ضلع لاڑکانہ میں ایک مسافر بس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ چلتی بس کے ٹائروں پر فائر کیا اور ڈرائیور کو مجبوراً بس روکنا پڑی۔ 8 نقاب پوش ڈاکو بس کے اندر داخل ہوئے اور 40 مسافروں کے موبائل فون اور بٹوے ایک ایک کر کے اپنے قبضے میں کرنے لگے۔ ایک ڈاکو نے غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ ان مسافروں میں اس کے پرائمری اسکول کا ٹیچر بھی شامل ہے جو اس کے گاؤں میں پڑھاتا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ وہ اپنے ٹیچر کو بھی لوٹے، لہٰذا اس نے موبائل فون اور بٹوا اس بزرگ ٹیچر کو واپس کر دیا۔ ٹیچر یہ بات سمجھ چکا تھا کہ یہ موبائل فون اور بٹوا واپس کرنے والا کوئی میرا شاگرد ہی ہے جو اب ڈاکو بن چکا ہے۔ اسے اس بات کا بہت افسوس ہوا، لیکن فی الحال وہ اپنے تمام مسافروں کو مالی خسارے سے بچانا چاہتا تھا، ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، لہٰذا بزرگ ٹیچر نے ایک چال چلی۔ اینک اتار کر اپنے آنسو صاف کیے اور بلند آواز میں کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے میرا ایک قابل ترین شاگرد تھا۔ ضلع لاڑکانہ کے ایک گاؤں میں موبائل نیٹ ورک کا ایشو تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی باسی اپنے پیاروں کو فون نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس علاقے میں کسی بھی موبائل نیٹ ورک کے سگنل موجود نہیں تھے۔ علاقے کے لوگ اس گاؤں کے وڈیرے کے پاس آتے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے، سائیں ہم کسی سے رابطہ نہیں رکھ سکتے، مہربانی کر کے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ سائیں قائم علی ان سے یہی کہتا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ پھر اپنے ذرائع استعمال کر کے قائم علی نے اس گاؤں میں ایک کمپنی کا موبائل ٹاور لگوایا اور یہ ایشو ختم ہوا۔ ٹاور کے انسٹالیشن کے کام جاری تھا۔ ایک انجینئر 45 میٹر کی بلندی پر اینٹی نازو وغیرہ لگا رہا تھا۔ کہنا چاہتے ہوئے اس کی نظر سائیں قائم علی کی حویلی کی چھت پر پڑی۔ چھت پر ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے ایک عورت رسیوں میں بندھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے تو انجینئر نے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر اپنے موبائل کا کیمرہ زوم کیا تو اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ یہ ایک نوجوان عورت تھی جو رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور پھر اس سے ایک چارپائی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس سے ٹھیک سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی ٹاور سے نیچے گر جائے گا۔ اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ ٹاور کے انسٹالیشن کا کام کرنے والے ٹیکنیشین مزدوروں کی رہائش بھی قائم علی کے ڈیرے پر ہی تھی۔ رات کو انجینئر نے اپنے ایک دوست سے کہا، یار میں نے ایک عبرت ناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وڈیرے نے کسی عورت کو اغوا کر رکھا ہے اور اسے چھت پر رسیوں سے باندھ رکھا ہے۔ میں نے خود دیکھا، ہمیں کسی طرح پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، اس عورت کو آزاد کروانا چاہیے۔ انجینئر کے دوست نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ عقل سے کام لو، ہمارا دماغ تو ٹھیک ہے، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم جہاں اجنبی ہیں، دوسرے ہم ڈیرے کے ہی مہمان ہیں، جہاں گاؤں دیہاتوں میں اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، جہاں کی دشمنیاں مشہور ہیں۔ سالوں سال لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جانیں لیتے ہیں، مگر انجینئر جس کا نام تیمور تھا بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں چین سے نہیں سو سکتا۔ جب اس عورت کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ تیمور کے دوست نے کہا کہ اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو خود سے مرو، لیکن یاد رکھو اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ جب تیمور کو یقین ہو گیا کہ میری کوئی مدد کرنے والا نہیں، تب وہ سوچنے لگا کہ کس طرح اس لڑکی کی مدد کی جائے جو چھت پر آخری سانسیں لے رہی ہے۔ سائیں قائم علی کا منشی میر علی مہمانوں کی خدمت کر رہا تھا اور ان کے کھانے کا بندوبست کر رہا تھا۔ انجینئر تیمور کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے منشی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھا جہاں وہ منشی سے بات کر سکے۔ تمام مہمانوں کو کھانا دے کر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگا تو تیمور جلدی سے اس منشی کے پاس آیا، اسے پیچھے سے آواز دی۔ منشی اپنی جگہ پر رک گیا، پھر اس سے کہنے لگا، جناب میں نے آپ سے بات کرنی ہے، معذرت کے ساتھ صرف آپ کے 2 منٹ ہی لوں گا۔ منشی یہ سن کر حیران ہوا، پھر تیمور سے کہنے لگا، جناب بتائیں کیا بات ہے؟ جس پر اس نے کہا، کل سے میں عجیب صورتحال سے گزر رہا ہوں۔ کل جب میں ٹاور پر چڑھا تھا تب میں نے حویلی کی چھت پر ایک منظر دیکھا۔ تمہارے مالک وڈیرے قائم علی نے کسی عورت کو اغوا کر رکھا ہے، اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عورت کی مدد کیجیے۔ یہ سن کر منشی میر علی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
इसके चेहरे का रंग सुर्ख हो चुका था। इसने तैमूर से कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। अब जब आपने अपनी आंखों से देख ही लिया है, तो मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो औरत कायम अली की अपनी बेटी है। ये सुनकर तैमूर हैरान हुआ और मुंशी से कहने लगा, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा? मुंशी ने कहा कि जनाब, मैं आपको फिर कभी डिटेल से बताऊंगा। अभी मैंने जाना है और गुफ्तगू करने के लिए ये जगह ठीक नहीं। दीवारों के भी कान हुआ करते हैं। अगर किसी ने हमारी गुफ्तगू सुन ली तो आपके लिए तो मसला बनेगा, साथ साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी। मैं भी बेरोजगार हो जाऊंगा और मैं तो इसी इलाके का रहने वाला हूँ। कल को वडेरा मुझे कैसे जिंदा छोड़ेगा? मैं कल रात दोबारा आपसे मिलूंगा। तैमूर को मुंशी मीर अली का इंतजार था। वो इस बारे में जानना चाहता था कि जालिम बाप ने अपनी ही बेटी को इस कैद में क्यों रखा है। इसकी क्या गलती है? दूसरी रात खाना खाने के बाद मेहमान सो चुके थे। मुंशी मीर अली का ने तैमूर को कॉल की कि हवेली से बाहर एक जगह पर बुलाया। तैमूर वहां पहुंचा तो मुंशी ने कहा कि भाई बात सुने। सच पूछे तो मुझे भी इस बात का बहुत बड़ा गम है। कायम अली की ये बेटी जिसका नाम सजल है, ये हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी। इसने अपनी बेटी सजल को तालीम हासिल करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन वहां किसी सूरत किसी लड़के से बात करने की इजाजत नहीं दी, बल्कि इसके बारे में सोचना तक नहीं। सजल ने भी अपने बाप से इस बात का वादा किया कि मगर सजल ये भी जानती थी कि इसका वालिद इसकी शादी अपने भतीजे के साथ करना चाहता है, जो कि एक आवारा किस्म का शख्स था। इसका नाम जाफर था और ये जाफर ही था जो सजल पे नजर रखता था। इसने अपने आदमी यूनिवर्सिटी का माहौल चेक करने के लिए भी भेजे थे और अदारे के अंदर भी ऐसे लोग थे जिनका जाफर से राबता था और वो सजल के बारे में इसे बताते थे। हालांकि सजल इन बातों से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थी और ये बात नहीं जानती थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस पर नजर रखी जा रही है। हैदराबाद की फैमिली का एक लड़का था जिसका नाम जीशान था। सजल से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी सूरत से शान से बात करने के लिए आमादा नहीं थी। बल्कि इसने तो जीशान को बताया भी था कि हमारी फैमिली, हमारे खानदान लड़कियों को किसी से बात करने की इजाजत नहीं देती और जिस तरह की तुम कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी जान को खतरा है। ऐसा मत करो, मुझसे बात करने की कोशिश ना करो। मगर वो सजल को पसंद करता था और बार बार सजल से बात करने की कोशिश करता था। वो ये एक अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली का लड़का था, मगर वो अपने घर वालों के खौफ की वजह से जिशान को इग्नोर करती थी। हालांकि वो जानती थी कि इसका कजन जाफर कैसा है। वो इसे सख्त नापसंद करती थी। फिर एक दिन सजल ने खुद जिशान से मुलाकात की, मगर इस मुलाकात में इसने जिशान को मना किया कि खुदारा मुझसे दोबारा मिलना, तो मेरे खानदान से वाकिफ नहीं हो। मगर वो इतना जिद्दी था कि इसने सजल से कहा कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। सजल इसके पागलपन पर हैरान थी। हाथ जोड़कर इसने कहा कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मेरी बात पर अमल करो। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, ना ही मेरा पीछा करना। जीशान सजल की मजबूरी को समझ चुका था। इसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और सजल से वादा किया कि आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मगर जैसे ही वो पार्क में बात कर रहे थे, कैंटीन के एक मुलाजिम ने इनकी तस्वीर कैप्चर की और फिर वो एक तस्वीर जाफर को भेज दी। जाफर सजल को किसी अजनबी के साथ देखकर आग बगोला हो चुका था। वो मोबाइल लेकर सीधा कायम अली के पास गया और कहा, चचा, मैंने आपको मना किया था कि सजल को शहर में तालीम हासिल मत करवाएं। ये देखें, किसी लड़के के साथ बैठी है। अब ये हमारा नाम, इस खानदान के नाम मट्टी में जरूर मिलाएगी। कायम अली ने जब देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। इसने खराब तबीयत का बहाना किया और अपनी बीवी जुबैदा से कहा कि अपनी बेटी को बुलाओ। अपनी लाडली को कहना कि तुम्हारा बाप जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। जुबैदा हाथ जोड़कर अपने शोहर से कहती थी कि बच्ची है, एक बार वो जब घर आएगी तो मैं इसे समझाऊंगी। खुदारा मेरी बेटी पे जुल्म मत कीजिए, इसके साथ ना इंसाफी ना करना। लेकिन वो अपने शोहर कायम अली से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि इसका शोहर जब एक बार एक चीज का इरादा कर लेता है तो फिर अपने इरादे से पीछे हरगिज नहीं हटता। फिर जुबैदा ने रोते हुए सजल को फोन किया। इससे कहा कि तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है, जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन सजल नहीं जाती थी कि ये इसकी यूनिवर्सिटी में इसका आखिरी दिन है। वो तो अपने खानदान, अपने वालिद से मोहब्बत करती थी। इसी मोहब्बत में इसने जिशान को ठुकरा दिया।
मगर इसके बाप ने महज वो तस्वीर देखकर अपने भतीजे जाफर की बात पे यकीन कर लिया। सजल ने जैसे ही फोन सुना तो अपने बाप के लिए दौड़ी चली आई। फौरन हैदराबाद से लड़काना रवाना हुई। मगर वो जैसे ही यहाँ आई तो यहाँ के हालात तो कुछ और ही थे। हवेली में हर शख्स इसे गुस्से से देख रहा था। खासकर इसका चचा और इसका बाप कायम अली गुस्से में था। पहले सजल को खूब जदकोब किया गया, मारा गया, फिर इसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मां जुबैदा अपनी बेटी के लिए तड़पती थी। अपने शौहर के सामने झोली फैलाकर बैठ गई और अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगने लगी। लेकिन कायम अली अपनी बीवी से बार बार यही कह रहा था। जब मैं मना करता था कि इसे नहीं पढ़ाना तो इस खानदान की वाहिद औरत थी जो अपनी बेटी सजल को पढ़ाना चाहती थी। लेकिन देखो, तुम्हारी बेटी ने हमारे मुंह पे कैसी कालक मली। वहां लड़कों से मिलती है, कल को ये किसी के साथ शादी भी कर लेगी। लेकिन जुबैदा झोली फैलाई अपने शोहर के सामने बैठी रही। मगर कायम अली के दिल में अब अपनी बेटी के लिए जरा बराबर भी रहम नहीं था। जुबैदा खिड़की से ही अपनी बेटी से मुलाकात करती थी। तो सजल ने अपनी माँ को बताया कि माँ, मैंने मना किया था। एक लड़का मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने इसे मना किया था कि मुझसे दोबारा नहीं मिलना। मेरी मंगनी तय हो चुकी है और वो लड़का मेरी बात भी मान गया था। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश न करने का वादा किया। मगर इसके बावजूद मीर जाफर ने मेरे साथ अच्छा ना किया। इसी के किसी आदमी ने मेरी तस्वीर बना ली और मीर जाफर को भेजी और अब अब्बा को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। माँ अपनी बेटी से यही कहती कि बेटी, मैं भी खुद बेबस हूँ। मैं तुम्हारे वालिद का मुकाबला नहीं कर सकती। बार बार तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। खुदा से दुआ करो कि तुम्हारा बाप तुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला इसके दिल में रहम डाल दे। तैमूर ने जब सजल की ये कहानी सुनी तो काफी अफसोस हुआ। वो मुंशी मीर अली से कहने लगा कि आप इस लड़की की मदद क्यों नहीं करते। जिस पर मुंशी इसे कहने लगा कि मैं कैसे सजल की मदद करूं। मेरा मालिक तो साईं कायम अली है। अगर मैं इसके खिलाफ गया तो समझो अपने मालिक से निमक हरामी की। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, ये तो आपने अजीब बात कही। मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी बेटी को इस तरह कोई रस्सियों से बांधे जबकि इसकी कोई गलती भी ना हो तो आपको कैसा महसूस होगा। तैमूर का ये सवाल सुनकर वो खामोश हो गया। इसने अपनी नजरें तैमूर के सामने झुका ली। वापस घर आ गया तो बार बार सजल के बारे में सोच रहा था। ने तो सजल को अपने हाथों से खिलाया था। मुंशी मीर का इकलौता बेटा था जिसका नाम फैजान था। लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि काश इसकी बेटी भी होती। इसने अपनी बेटी नहीं थी तो वो सजल को अपनी बेटी ही समझता था। सुबह हुई तो मुंशी मीर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरे लिए दुआ करना। मैं सजल बेटी को अजियत की इस जिंदगी से निजात दिलाना चाहता हूँ। बीवी इससे पूछ रही थी कि तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर इसने बीवी को बताया कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा। इसने तैमूर से कहा कि तुम किसी तरह जिशान से राब्ता करो और इसे बताओ कि सजल की जिंदगी खतरे में है। अगर सजल इसे अब भी मोहब्बत करते हो तो इसे इस जहन्नम से ले जाओ। मुंशी मीर ने किसी तरह जिशान के घर का एड्रेस भी पता किया और फिर तैमूर जिशान की तरफ हैदराबाद रवाना हुआ। इसे यही बताया कि सजल की जिंदगी खतरे में है। इसका बाप इसे रस्सियों से बांधकर जानवरों की तरह सलूक करता है। जिशान को ये सुनकर काफी अफसोस हुआ। वो तो यही कह रहा था कि सजल ने तो अपने खानदान और बाप की खातिर मुझे छोड़ दिया था। मगर इसके बावजूद इसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। तैमूर ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही किसी ने तुम दोनों की तस्वीर बना ली और फिर वो तस्वीर सजल के बाप को दिखाई। तैमूर जीशान को लेकर लड़काना आया। मुंशी मीर अली और तैमूर ने मिलकर सजल की मदद की और इसे कैद से रहाई देने की कोशिश की। तैमूर और जीशान सड़क पर गाड़ी पर सजल का इंतजार कर रहे थे जबकि रात की तारीकी में मुंशी मीर अली हवेली की छत पर आया। साईं कायम अली मुंशी मीर अली पर पूरा भरोसा करता था। जिस कमरे में सजल को कैद किया गया था इस मकान के ताले की चाबी मीर अली के पास ही थी। इसने ताला खोला, सजल को रस्सियों से आजाद किया और रोकर कहा, बेटी आओ, तुम्हें आज इस कैद से रहाई मिल चुकी है। वो इसे एक खुफिया दरवाजे से हवेली से बाहर लाया। मगर इसके लिए इसने हवेली की बावर्ची की मदद जरूर हासिल की। बावर्ची ने आज रात के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। कायम अली का पूरा खानदान गहरी नींद में था। हत्ता कि इसने कायम अली के कुत्तों को भी बेहोश किया था। कायम अली सजल को जिशान के पास ले गया और फिर तैमूर और जिशान सजल को यहाँ से दूर कराची ले गए। मुंशी मीर ने सुख का सांस लिया। आज इसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मगर सुबह हवेली में कहराम मच गया क्योंकि कायम अली की बेटी सजल गायब थी। कायम अली ने एक एक मुलाजिम को लाइन में खड़ा किया, इन्हें मारना शुरू किया। मगर इसका शक अभी तक मुंशी मीर अली तक न गया था।
फिर मुंशी मीर अली का एक मुखालिफ जो इसी गांव में था, इसने कायम अली से यही कहा कि जिस पर आपको सबसे ज्यादा इत्मीनान है, इसी ने सज्जन को कैद से आजादी दी। कायम अली को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था, तो इसने वडेरे को वीडियो सबूत के तौर पर दी, जहां मुंशी मीर अली को अपने साथ लेकर हवेली से बाहर जा रहा था। कायम अली ने जैसे ही वीडियो देखी तो गुस्से से आग बगोला हो गया। कहने लगा कि मुंशी को ऐसी सजा मिलेगी जो इसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। जाफर को जब पता चला तो इसने अपने चचा को मशवरा दिया कि इस बेगैरत मुंशी को भूखे कुत्तों के आगे डाल दे, और वो भी सारे गांव के सामने, ताकि गांव वाले इबरत हासिल करें। लेकिन कायम अली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसने जाफर से कहा कि इसे इससे भी ज्यादा सख्त सजा देने का इरादा है मेरा। फिर इसने मुंशी मीर अली को पकड़ा, इसके दोनों पांवों में रस्सियां बांधी और फिर वो रस्सियां दो मोटे ताकतवर ऊंटों के गले में डाल दी। फिर इन ऊंटों को मुखालिफ सितम में दौड़ाया गया। मुंशी की मौत का तमाशा देखने के लिए पूरा गांव जमा था। इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मुंशी मीर अली अजियतनाक मौत में मरे। ऊंटों को दौड़ाया गया, बेचारे मुंशी मीर अली के जिस्म के दो टुकड़े हो गए और वो सजल को आजाद कराने के जुर्म में मारा गया। और फैजान ने अपने बाप को मरते देखा था, क्योंकि मुंशी मीर अली की बीवी और बेटे को भी मजबूर किया गया था कि वो मीर अली को मरते हुए देखें। मीर अली की मौत के बाद इसकी बीवी से यही कहा गया कि अपने बेटे को लेकर यहाँ से, इस गांव से चली जाओ, वरना तुम्हारे घर को आग लगा देंगी और तुम दोनों को भी जला दिया जाएगा। मीर अली की बीवी जरीना सुबहाती हुई अपने बेटे को लेकर वहां से रवाना हुई। वो अपनी बहन के घर गई, मगर फैजान जो कि इस वक्त 6 साल का था, अपने बाप को ना भुला सका। इसके बाप को दर्द तकलीफ के साथ मारा गया था। जरीना अपने बेटे फैजान की वजह से परेशान थी। इसे स्कूल में एडमिशन दिलवाया ताकि इसका ध्यान पढ़ाई की तरफ हो जाए और वो अपने बाप की मौत को भूल जाए। मगर स्कूल के अंदर भी वो अपने ही ख्यालों में गुम रहता, पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। एक दिन मास्टर साहब ने फैजान को बहुत मारा, क्योंकि एक आसान सा सवाल भी इससे हल ना हुआ। फैजान रोता हुआ घर आया तो माँ को सारे हालात बताए। इसकी माँ को बहुत अफसोस हुआ। दूसरे ही दिन इसकी माँ जरीना मास्टर साहब के पास गई। मास्टर याकूब के सामने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर साहब, मेरा बेटा यतीम है, मैं बेवा हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे शोर को वडेरे ने मारा था और पूरा गांव इसके मरने का तमाशा देख रहा था। फैजान ने भी अपनी आंखों से अपने बाप को मरते हुए देखा था। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे साथ नरमी करें, मेरे बेटे पे तशद्दुद मत करें। मास्टर याकूब ने जब जरीना की ये बात सुनी तो इसकी आंखों से आंसू आने लगे। इसने जरीना से कहा कि आज से आप मेरी बहन हैं। मुझे नहीं मालूम था कि फैजान यतीम है और इस हद से गुजरा है। मैं तो इसकी भलाई ही चाहता था, इसलिए इस पर सख्ती की, लेकिन आइंदा मैं इसे नहीं मारूंगा। इस दिन के बाद मास्टर साहब ने फैजान को ना मारा। इससे काफी शफकत से पेश आते थे। बाकी टीचर्स को भी मना किया कि फैजान को नहीं मारना। वो फैजान को नरमी से पढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन फैजान कुछ और ही सोचों में था। 5 जमातों से ज्यादा ना पढ़ पाया और स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने पर मास्टर याकूब को बहुत अफसोस हुआ। वो जानता था कि फिजान एक ज़हीन और लायक बच्चा है, लेकिन एक हादसे से गुजरा है और पढ़ाई करना इसके लिए काफी दुश्वार हो चुका है। इसका फोकस कहीं और था। इसका दिमाग अभी तक इस बात पर अटका था जब पूरा गांव इसकी बाप की मौत पर नारे लगा रहा था। कायम अली जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कायम अली एक ऐसा नाम था जो वो भुला ना पाया था। महज 18 साल की उम्र में ही इसने अपने बाप का बदला लेने का फैसला किया। जिस उम्र में बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, इस उम्र में वो अपने बाप के कातिल को मारना चाहता था, मगर इसके पास कोई पिस्टल नहीं था। वो हैरान था कि कैसे पिस्टल का बंदोबस्त कर सके। इसके एक दोस्त का नाम नासिर था, जिसको इसने अपने साथ मिला लिया था। नासिर ने इससे वादा किया कि मैं अपने बाप का पिस्टल तुम्हें ला दूंगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसने नासिर से कहा कि ठीक है, मेरे लिए पिस्टल का बंदोबस्त करो। नासिर अपने बाप का पिस्टल चुरा कर इसके पास आया और इसे पिस्टल दिया। वो माँ के पास आया, सलाम किया और कहा, माँ, मैं मजदूरी करने के लिए लड़काना जा रहा हूँ। घर के हालात काफी तंग है, लिहाजा यूं फारग गांव में नहीं घूम सकता। माँ ने अपने बेटे को मना किया कि मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी उम्र ही क्या है। लेकिन वो मजदूरी का बहाना करके कायम अली की तरफ रवाना हुआ। इसे बताया गया था कि कायम अली एक जगह तकरीर करने वाला है। इसके लिए स्टेज बनाई गई थी। इलेक्शन कैंपेन के लिए वो साथ वाले गांव में आ रहा था। फैजान भी वहां पहले से ही मौजूद था। वो बड़ी बेसब्री से कायम अली का इंतजार कर रहा था। कायम अली इस गांव में आया था
इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। फैजान पहले ही निश्चित में बैठा हुआ था और एक अच्छे मौके की तलाश में था। जैसे ही कायम अली ने अपनी तकरीर शुरू की, फैजान ने पिस्टल निकाला और फिर इसके बाद कायम अली पर फायर कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों में भगदड़ मच गई और इसी का मौका फायदा उठाते हुए फैजान ने भागना शुरू किया। जख्मी हालत में कायम अली को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम चुका था, क्योंकि गोली इसके सीने के दिल को पार कर गई थी। कायम अली जानता था कि अब वो वापस घर नहीं जा सकता। इसने एक जंगल का रुख किया। वो जंगल में छुपना चाहता था। वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में इसके साथ क्या होगा, लेकिन वो फिर भी छुपने की कोशिश कर रहा था। ये जिंदगी की इसकी पहली रात थी जो इसने जंगल में गुजारी थी। ये एक खूंखार जंगल था जहां वो खौफ के मारे दरख्त पे बैठा था। सुबह हुई तो एक डाकू की इस पर नजर पड़ी और इसे नीचे उतरने का कहा। वो खौफ के मारे नीचे नहीं उतर रहा था। फिर जब इसे इस बात का यकीन हो गया कि इसके पास दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं, तब वो दरख्त से नीचे उतरा। डाकू पकड़कर इसे अपने सरदार के पास ले गए। इनके सरदार का नाम सुल्तान था। सुल्तान इससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। जिस पर इसने सुल्तान को सब सच सच बता दिया कि मैं एक कत्ल करके यहाँ आया हूँ। सुल्तान को इसकी बात पर यकीन ना आया कि एक कमजोर सा लड़का किसी को कैसे मार सकता है। लेकिन जब इसने बताया कि मैंने कायम अली को मारा है तो वो हैरान हुए। इन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि कायम अली को स्टेज पर ही मार दिया गया है, लेकिन इनको मारने वाला नामालूम शख्स अभी तक फरार है। सुल्तान ने इससे पूछा कि तुमने कायम अली को क्यों मारा, जिस पर इसने बताया कि इसने मेरे बाप को बेदर्दी से मारा था और मैं अभी तक अपने बाप का वो कत्ल ना भूल पाया। मैंने अपने बाप का बदला लिया। सुल्तान ने फैजान से पूछा कि कायम अली ने तुम्हारे बाप को क्यों मारा था, जिस पर फैजान ने इसे बताया कि मेरे बाप की सिर्फ यही गलती थी कि इसने कायम अली की बेटी को आजाद करवाया था। इस जालिम बाप से जो अपनी बेटी पर जुल्म कर रहा था। कई सालों से वो बेचारी अपने ही बाप की कैद में थी और तड़प तड़प कर मर रही थी। मैं इस वक्त बहुत छोटा था जब इसने मेरे बाप को पूरे गांव के सामने मारा था और पूरा गांव इस वक्त मेरे बाप की मौत का तमाशा देख रहा था। सुल्तान ने फैजान से कहा, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? तुम बहुत बहादुर लड़के हो और हम बहादुर लोगों की कदर करते हैं। वैसे भी तुम अब वापस नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस तुम्हारी तलाश में होगी। फैजान ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ रहने के लिए तो तैयार हूँ, मगर मुझे अपनी माँ की वजह से परेशानी हो रही है। वो अकेली है। मैंने तो इससे कहा था कि मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने, क्योंकि अगर मैं माँ को हकीकत बताता तो माँ मुझे किसी सूरत इस बात की इजाजत ना देती कि मैं कायम अली को मार दूं। इसे हमेशा मेरी ही परवाह थी। वो मेरी ही भलाई चाहती थी, मुझे पढ़ाना चाहती थी। लेकिन मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। काश कि वो मंजर मैं अपनी आंखों से न देखता, तो शायद मैं पढ़ लिख भी जाता। लेकिन पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे बाप का कातिल का चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने ही रहता था। सुल्तान ने इसे तसल्ली दी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ को ये इत्तला दे दी जाएगी कि तुम महफूज हाथों में हैं। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो तुम्हारी माँ को हम इधर भी ला सकते हैं। वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। इसकी आंखें ठंडी रहेंगी। रिजवान भी यही चाहता था कि मैं भी यही चाहता हूँ कि माँ यहाँ आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो आप लोगों का मुझ पे एहसान होगा। सुल्तान ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ यहाँ पहुंच जाएगी। रात के अंधेरे में सुल्तान का आदमी गांव में गया था और इनके घर की दीवार फैलाकर घर में दाखिल हुआ तो अचानक जरीना एक अजनबी शख्स को अपने घर में देखकर परेशान हो गई। इससे पूछने लगी, आप कौन हैं? जिस पर इसने बताया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा हमारे पास है। मैं आपको लेने आया हूँ। आपके बेटे ने अपने बाप का बदला लिया है और कायम अली को गोली मार दी। ये सुनकर जरीना हैरान हुई। कहने लगी, कायम अली ने को मेरे फैजान ने मारा? जिस पर इसने बताया, हाँ, कायम अली को आपके बेटे ने ही मारा। माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही थी और इस आदमी के साथ रवाना हुई। 1 घंटे बाद वो अपने बेटे के सामने थी। इसने बेटे को गले से लगाया। वो दोनों सुल्तान के साथ ही रहने लगे। सुल्तान ने जरीना को अपनी बहन का दर्जा दिया और फैजान को अपना छोटा भाई बना लिया। सुल्तान ने फैजान को बताया कि हम अपने हक के लिए यहाँ जमा हैं। हमारा ये इलाका कई महरूमियों का शिकार है। ना अच्छी तालीम है, ना ही बिजली की सहूलत मौजूद है। हमारा शिकार वो करप्ट लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। सुल्तान एक पुलिस मुकाबले में मारा गया, जिसके बाद सुल्तान का भाई इनका सरदार बन गया।
और फैजान इसका नायब था। एक बार एक तेज रफ्तार बस ने गांव के दो बच्चों को कुचल दिया, जो कि स्कूल जा रहे थे। इस ट्रेवलिंग कंपनी का मालिक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसने पुलिस वालों को पैसे देकर ये मामला ठप करवा दिया, लेकिन फैजान और इसके साथियों से ये बात बर्दाश्त न हुई। आज रात इनका मंसूबा था कि बस पर हमला करना है और इनकी कंपनी की बसेस को इस रूट पर सफर नहीं करने देना। चलती हुई बस पर उन्होंने फायरिंग की और फिर इसके बाद ड्राइवर को मजबूरन बस रोकनी पड़ी, वरना बस उलट भी सकती थी। एक एक करके वो तमाम मुसाफिरों से मोबाइल और बटुए लेना शुरू हो गए। मगर फैजान ये देखकर हैरान हुआ कि इसी बस में इसका उस्ताद मास्टर याकूब अली भी सफर कर रहा था। इससे ये बात बर्दाश्त न हुई कि वो अपने ही उस्ताद को लूटे। लिहाजा इसने मास्टर साहब को मोबाइल, फोन और बटुआ वापस कर दिया। मास्टर याकूब समझ चुके थे कि जिसने मुझे ये बटुआ और मोबाइल वापस किया है, ये मेरा कोई तालिबे इल्म ही होगा, जो मुझे जानता होगा, मुझसे पढ़ा होगा और अपनी जगह से खड़ा हुआ। बुलंद आवाज में कहने लगा, तुम जो भी हो, मैं ये बटुआ और मोबाइल वापस नहीं लेना चाहूंगा, जब तक तुम तमाम मुसाफिरों को वापस नहीं कर देते। सुल्तान के भाई ने जब ये सुना तो वो याकूब की तरफ आया, इसे गर्दन से पकड़कर थप्पड़ मारा और कहा, बुड्ढे, जहाँ बैठ जाओ चुप करके। फैजान से ये बात बर्दाश्त ना हुई। हसन सुल्तान के भाई को मना किया तो इसके भाई ने फैजान पर ही पिस्टल तान लिया। तीन लोग फैजान के साथ थे, उन्होंने सुल्तान के भाई पर पिस्तौल तान लिया और एक उस्ताद की वजह से आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पर फायरिंग की। सुल्तान का भाई और फैजान दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। इनके साथियों ने जब देखा कि हमारा सरदार मार चुका है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर वहां से भागना शुरू किया। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने उन्होंने दो लाशों को उठाना शुरू किया। फैजान के चेहरे से जब नकाब हटाया गया, तो मास्टर यकूब की आंखों में आंसू जारी हो गए। इसे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि फैजान डाकुओं के गिरोह में शामिल हो चुका था। फिर इसे फैजान के बारे में पता चला कि इसने अपने बाप का बदला भी लिया था, एक सियासतदान को मार दिया था, वो भी भरी महफिल में। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात ने मास्टर यकूब को मुतासर किया कि इसके दिल में आज भी उस्ताद का एहतराम था। इस बात से साबित होता है कि फैजान बुरा नहीं,